Good evening to everybody. In the last lecture, we discussed on different type of services which are provided by the offline and online library, and library consortia advantage and limitation we have been discussed in the last lecture. Okay. Now in today's lecture we are going to discuss classification trains. After understanding the meaning of classification, then we try to understand the meaning of library classifications, and after that we try to understand the different types of library classifications, features, characteristics and canons, which is given by Dr. S.R. Ranganathan. Now we are watching classification trains. Okay. So the Center for the Future of Library works to identify trains to librarianships in each and every field. For the field, not only present but future is also important, because which kind of the trains will be developed in the futures, it is need to be studied. If we don't consider the future trends regarding our field, if we don't consider or think about the future trends in our present about our field, then what will happen? We may miss some opportunity in the futures, and that is why it is important. Future trends are important each and every field. So our library science is not also exception for this. तो जब हम वर्तमान में हमारे फील्ड के बारे में बात करते हैं, स्टडी करते हैं, लर्निंग करते हैं, टीचिंग करते हैं, रिसर्च करते हैं, ठीक उसी तरह हमें हमारे फील्ड के फ्यूचर ट्रेंड के बारे में भी सोचना पड़ता है, उसका स्टडी करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाके हमारा जो सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, वो डेवलप होता है और अपॉर्चुनिटीज़ हमें क्रिएट होती है इन द फ्यूचर में. So this collection is available to help libraries and librarians understand how trends are developing and why they matter. Each trend is updated as new reports and articles are made available. New trends will be added as they are developed. Okay. So in this way, new trends, it is need to be developed each and every subject, each and every discipline, because it will be not develop and grow our subject, but it will create the future opportunity, future scope, future research about our field. तो फ्यूचर ट्रेंड से हमें हमारा सब्जेक्ट ग्रोथ नहीं होता, डेवलप नहीं होता. इसके अलावा कई सारी अपॉर्चुनिटी रिसर्च के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में हमें क्रिएट होती है. इसलिए फ्यूचर ट्रेंड को महत्व दिया जाता है each and every field. Each trend is updated as new report and article are made available. तो हर एक फील्ड में, ट्रेंड में
अपडेशन होता है, क्योंकि रिसर्च इज कंटिन्यूसली गोइंग ऑन ईच एंड एवरी फील्ड टू डेवलप द ट्रेंड्स इन द फ्यूचर्स। तो फ्यूचर में ट्रेंड डेवलप करने के लिए हमेशा आर्टिकल या रिसर्च होते रहते हैं, और रिपोर्ट और आर्टिकल रिसर्च यानी कि रिसर्च डेवलप किया जाता है। न्यू ट्रेंड्स विल बी एडेड एज दे आर डेवलप। जैसे ही न्यू ट्रेंड्स डेवलप होते हैं वो इसमें एडेड किए जाते हैं। ट्रेंड्स विल बी ऑर्गेनाइज इनटू 7 कैटेगरीज, जैसे कि सोसाइटीज़ है, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, एनवायरनमेंट, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफिक्स। ओके, तो उसको क्या कहते हैं फिर? स्टिफ्ट कहते हैं। स्टिफ्ट इस 7 फील्ड में अलग अलग तरीके के ट्रेंड्स आते रहते हैं और डेवलप होते रहते हैं और ऐड होते रहते हैं। ओके, वी हैव बीन शेयर्ड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन ट्रेंड बिलो। ओके, the history and trends the history, trends and developments in library classification can be traced from epoch making year of 1876 when Melville Dewey published decimal classification। जब in the field of library information science Melville Dewey started the decimal classifications in 1876। 1876 में मेविल डिवे ने डेसिमल क्लासिफिकेशन तैयार किया। तो उससे ही ये ट्रेंड्स, पास्ट ट्रेंड्स कहा जाता है, वहाँ से स्टार्ट हुआ। ड्यूरिंग द पास्ट 12 डिकेड्स, और 12 साल में क्या हुआ? 12 डिकेड्स यानी कि 12 शतक में क्या हुआ? जो पीरियड यहाँ पे दिया है 1876 और 1896, डेवलप हैव टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन। तो इस कालावधि में बहुत सारे क्लासिफिकेशन डेवलपमेंट हुए और लाइब्रेरी फील्ड का जो विकास हम कहते हैं इस पीरियड में ज़्यादा हुआ। During the period, many journals as well as special scheme have been published. Some of the major journal scheme, ये पीरियड जो दिया है यहाँ पर बहुत सारी लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम पब्लिश हुई। ओके, तो इसीलिए इस पीरियड को इम्पोर्टेंट कहा जाता है। तो वो कौन सा पीरियड है जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन की स्कीम जो है वो ज़्यादा फेमस हुई। तो उनका नाम भी यहाँ पर दिया है। तो अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम इस पीरियड में 1876 से लेकर 1819 तक, 96 तक अलग अलग स्कीम यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। जैसे कि डीडीसी, उसमें एक माइलस्टोन है जो डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के द्वारा डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन तैयार किया गया डीवी के द्वारा, मेविल डीवी के द्वारा। इस तरह से हम लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन में यहाँ पर बात कर सकते हैं कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन किस तरह से काम करता है। ओके,
तो सभी एग्जाम्पल यहाँ पर दिए। डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन जो डीवे के द्वारा इन्वेंटेड किया गया, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी बोलते हैं। कोलन क्लासिफिकेशन जो रंगनाथन के द्वारा दिया गया। और many national और international organizations and eminent classificationists took the course of library classification। तो बहुत सारे तज्ञ जो थे उन्होंने क्लासिफिकेशन फील्ड में काम किया और बहुत सारे अलग अलग क्लासिफिकेशन फाइंड आउट किए। Several international, regional, national conference were held to discuss various aspects of classification. The output of literature covering various facets of library classification in terms of both macro and micro documents is very impressive. The following section briefly deal with the trends and development, especially during the last 5 decades. Okay. तो इस तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम यहाँ पर दी गई है और उनके जो फीचर्स है वो यहाँ पर डिस्कस किए गए। वाइल ट्रेसिंग द ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट्स ड्यूरिंग द हंड्रेड्स years of classification, Ranganathan recognized 3 distinct periods, means pre-facet period, which is considered between 1876 to 1896, transition to facet period 1897 to 1932, and facet period which is considered from 1933 to 1973। तो ये 3 पीरियड का स्टडी इसमें किया जाता है डेवलपमेंट में, क्लासिफिकेशन किस तरह से हुआ। सो इन प्रीफेस पीरियड मेविल डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन विच वाज formed in 1876 and C. Cutter expansive classification which is invented 1879 were published। तो डिवेज का मेविल डिवेज का डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876 में पब्लिश हुआ। सी कटर का एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन 1879 में पब्लिश हुआ। इन द ट्रांजिशन टू फैसेट पीरियड यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन जो 1897 से लेकर 1905 एंड लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन ऑफ Congress classification 1902 were published हुआ। Okay, the facet period witnessed the publications of Ranganathan classification in 1933, then Bliss bibliographical classification which is published in 1935, library bibliographic classification which is published in 1960, and Fremont F. Ryder International Classification which is published in 1961. Some of these classification have an organizations or an institutions to take up the responsibility for their revisions and development, maintenance and application। Okay, इस तरह से अलग अलग प्रकार की जो बातें यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस क्लासीफायर ने किस साल को, कौन से साल को उनका जो स्कीम है पब्लिश किया, उनका जो वर्क है पब्लिश किया, उसकी डेट यहाँ पर दी है। तो 3 भागों में उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 3 भागों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। ओके, देन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करते हैं जो क्लासिफिकेशन के संदर्भ में ली गई। रिसर्च दैट इज कॉल्ड ISCCR
since 1957, FID or CR has organized 6 international study conference on classification research. The first ISCCR was held at Dorking. तो यहाँ पर सब डेट और कॉन्फ्रेंस का नाम दिया गया है, आपको ये ध्यान में रखना होगा। तो FIDICR जिसे हम इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन कहते हैं, तो ये जो रिसर्च कॉन्फ्रेंस है 1957 में ली गई FID के द्वारा ऑर्गेनाइज 6 इंटरनेशनल स्टडी कॉन्फ्रेंस ऑन क्लासिफिकेशन रिसर्च। क्लासिफिकेशन रिसर्च के संदर्भों में एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। द फर्स्ट ISCCR was held at Dorking, England। पहली जो ISCCR कॉन्फ्रेंस है डोर्किंग इंग्लैंड में आयोजित की गई 13 to 70 in 1957। ओके, रंगनाथन इन हिज ओपनिंग एड्रेस dwelt upon library classification as a discipline। तो उन्होंने अपना पेपर यहाँ पर प्रेजेंट किया जो लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन एज डिसिप्लिन्स के नाम से जाना जाता है। तो FIDICR ओके, तो इनके द्वारा जो कॉन्फ्रेंस ली गई जिसे हम 6 कॉन्फ्रेंस कहते हैं, वो कहाँ पर ली गई, उसकी डेट क्या थी, उसमें किस प्रकार पर किस टॉपिक पर वो कॉन्फ्रेंस थी, और हमारे द्वारा इंडियन एक्सपर्ट के द्वारा वहाँ पर कौन से पेपर्स प्रेजेंट किए गए, कौन से टॉपिक पर पेपर प्रेजेंट किए गए, इसके बारे में हमें यहाँ पर चर्चा करनी है। ओके, second ISCCR was held in Elsinore, Denmark during। सेकंड कहाँ पे ली गई, दिया है यहाँ पे at Elsinore, Denmark when September 14 to 18 in 1964 Ranganathan delivered the presidential address entitled Library Classification Century। Ranganathan was president at that time of this conference, and the address speech given by him on the topic library classification through a century। okay, then the third ISCCR was held at Bombay। थर्ड कहाँ पे ली गई, बॉम्बे को ड्यूरिंग जनवरी 6 to 11 in 1975। ओके, द फोर्थ held at Augsburg, Germany, June 28 to July 2 in 1982। The theme the conference was universal classification, subject analysis and ordering system। okay, so all these are key points in this conference, the fourth conference। then fifth one, you can note down all these conference। fifth ISCCR was held at Toronto, Canada, June 28 in 1991। The theme of the conference was classification research for knowledge, presentation and organization। okay, so you can note down all these points। Sixth ISCCR was held at University College London,
the sequence, the numbers of the conference, then place of conference, country of conference, date of conference is given there, and theme of conference is given there. So you should remember all these conference with all these points. तो आपको ये सभी पॉइंट्स याद रखने हैं, इस पर आपको सवाल पूछा जा सकता है मैच द पेयर में. ऑन द टॉपिक नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, तो ये 6 जो कॉन्फ्रेंस है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, द यूनिवर्सिटी कॉलेज लंडन आइस्लिप क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, that is called CRG, and International Society for Knowledge Organization, that is called ISCO, sponsor this conference. Okay, तो इन सभी कॉन्फ्रेंस को किसने स्पॉन्सर किया, नाम यहाँ पर दिया गया है कि इस तरह से सभी कॉन्फ्रेंस के नाम, उनकी थीम, उनकी डेट, उनकी प्लेस और किसके द्वारा आयोजित की गई थी, उसका सीक्वेंस क्या था, वो आपको ध्यान में रखना है. यहाँ पर आपको 4th कॉन्फ्रेंस, उसके प्लेस पूछे जाएंगे या उनके डेट पूछे जाएंगे या उनकी थीम पूछी जाएंगी. तो इस पर 4 से 5 सवाल इस पर पूछे जा सकते हैं. ओके, मैच द पेयर में. और एक कॉम्प्लेक्स टाइप में एक सवाल आपको आ सकता है, तो इसको आपको अच्छी तरह से करना है. भले ये हमें थ्योरी लगता हो, लेकिन ऐसी थ्योरी पे ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं. ओके, now ISCO International Conference, the International Society for Knowledge Organization, that is called the ISCO. Okay, founded in 1989, 1889 में इसकी स्थापना हुई ISCO की, हैज़ ऑर्गेनाइज 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, और इसके द्वारा 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए ऑन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन मीन्स क्लासिफिकेशन. ओके, यूनिवर्सल नॉलेज, इसको ही हम नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, नॉलेज मैनेजमेंट कहते हैं, यूनिवर्सल नॉलेज कहते हैं. ओके, द समरी ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस डेलिबरेशन इज प्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स. तो कुछ समरी यहाँ पर हमें दी गई है, उसके द्वारा हम अलग अलग जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं. तो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड बाय द ISCO at Darmstadt. Okay, in which city it is organized? First international conference was held at Darmstadt. Okay, technical university in Germany. Where? Germany. On which date? August 15 to 17 in 1990. 1990 में अगस्त में ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस? टूल फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस. टूल फॉर नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड ह्यूमन इंटरफेस, ये उसकी थीम थी. और जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल वॉज हेल्ड एट मद्रास, को आयोजित की गई हमारे इंडिया में अगस्त 26 टू 28 इन 1992 में आयोजित की गई. और इसकी थीम क्या थी फिर? कॉग्निटिव पैराडिगम इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन. कॉग्निटिव पैराडिगम इन नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, इस थीम पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई. और उसके द्वारा जो चर्चा हुई उससे हमारा क्लासिफिकेशन जो सब्जेक्ट है वो डेवलप हुआ. बहुत सारी चीज़ें और रिसर्च इसमें ऐड हुई. और थर्ड कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड एट रॉयल स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप, कोपेनहेगन डेनमार्क. कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित की गई.
June 21 to 24 in 1994. The theme of the conference was knowledge organization and quality management. Okay. तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड क्वालिटी मैनेजमेंट इस थीम किस तरह से आयोजित की गई है 21 टू 24 1994 में ये आयोजित की गई कोपेनहेगन डेनमार्क में। ओके, तो इस तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग कॉन्फ्रेंस जो ऐड की गई अलग अलग शहरों में अलग अलग ईयर में, तो इससे हमें अलग अलग थीम देखने को मिली और फिर हमारी क्लासिफिकेशन जो थीम है उसमें वो सारी ट्रेंड्स ऐड हुए और उस पर हमेशा चर्चा चलती रही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में। ओके, फिर जाके 4th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई एट जेम्स मेडिसन्स मेमोरियल बिल्डिंग, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, वॉशिंगटन ऑन जुलाई 15 to 19, 1996 में। The main theme of the conference was knowledge organization and change. Okay, तो उसकी मेन थीम क्या थी? फिर मेन थीम कॉन्फ्रेंस वाज नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज, इस पर आयोजित की गई। डेट क्या थी उसकी? 15 to 19, 1996। ओके, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। ओके, तो इस तरह से इसको के द्वारा जो अलग अलग इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। फिर कुछ हिस्ट्री के बारे में हम यहाँ पर जानकारी प्राप्त करते हैं। जो क्लासिफिकेशन ट्रेन, यूनिवर्सल नॉलेज ट्रेन या यूनिवर्सल सब्जेक्ट के बारे में हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। द हिस्ट्री ट्रेन्स एंड डेवलपमेंट इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन कैन बी ट्रेस फ्रॉम द इपोक मेकिंग ईयर 1876 when Melville Dewey published his decimal classification. Ranganathan lucidly traced the history of classification through century and identify 3 distinct period. Okay, तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। और during the past 5 decades many development have been taken place in the 3 principal scheme editions. यहाँ पर अलग अलग स्कीम आयोजित की गई अलग अलग पीरियड में जो क्लासीफाई होती है जो हमने देखी। और फिर बाद में अलग अलग कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई। CC 7th edition was published in 1987. Several international 6 conference was held to discuss various facets of classification and knowledge organization. FID और CR organized until 1976 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। और कहाँ पर कब आयोजित की गई उसकी डेट के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। और फिर इसको द्वारा भी कुछ 4 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई और उसके बारे में भी हमने यहाँ पर जानकारी प्राप्त की। सो इन दिस वे दिस टॉपिक हैज़ बीन फिनिश्ड हियर। Library classification and classification means what? Library classification mean what? Facet of library classification and trends of library classification. On all points we have been discussed here and we try to understand all this concept in details. Now we are going to discuss on the 3 topic mapping of subject in library classification scheme, that is called DDC, UDC and CC. Okay, so given the variety of approaches to mapping the universe knowledge that have been presented and discussed in the literature, the purpose of this paper is to systemize their main principle and their application in the major general modern library classification scheme
We conducted an analysis of literature on the classification and main classification system, mainly universe decimal classification, Cutter expansive classification, subject classification of J.D. Brown, colon classification, Library of Congress classification, and biographic. Okay. Then classification, rider international classification, bibliographic classification, that is called BBK, broad system ordering classification. We conclude that arrangement of the main classes can be done following 4 principles that are not mutually exclusive: ideological principle, social purpose principle, scientific orders, and division by discipline. Okay, तो सभी प्रकार के जो क्लासिफिकेशन जो हमने यहाँ पर अभी देखे, वो सभी जो क्लासिफिकेशन है इन फॉलोइंग प्रिंसिपल पे फॉर्मुलेट किए गए हैं, कंडक्टेड अरेंजमेंट उनकी हमें देखने को मिलती है। तो कौन से प्रिंसिपल है फिर वो यहाँ पर दिए हैं। आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, सोशल पर्पस प्रिंसिपल, साइंटिफिक ऑर्डर एंड डिवीजन बाय डिसिप्लिन। ओके, तो ये यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। The paper provides example and analysis of each system. We also conclude that as knowledge is ever changing, classification also change and present a different structures of knowledge depending upon the society and time of their design. Okay, तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पर देखते हैं the concept of the universe of knowledge is a metaphor of great importance in the library classification theory. Different authors in different moments of history have provided example and models on this concept in relations to classification. Tree maps, atlas, and even constellations and multiverses. तो इस तरह से यूनिवर्स ऑफ नॉलेज जब हम कहते हैं तो ये कंसेप्ट जो है ये मेटाफर ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन थ्योरी में यूज की जाती है एज मेटाफर करके। और डिफरेंट ऑथर इन डिफरेंट मोमेंट ऑफ हिस्ट्री हैव प्रोवाइडेड एग्जांपल, अलग अलग ऑथर ने अलग अलग एग्जांपल देकर इसका इम्पोर्टेंस हमें बताया है। जैसे कि in relation classification, tree maps, atlas, and even constellations and multiverses are some of the examples that have been used in literatures. Common concern of all classification reflecting on the universe knowledge is the necessity of mapping or translating knowledge out there into concrete and logically developed classes that compound classification system. So this is one of the core aspect of knowledge organization and development of knowledge. Okay, तो यहाँ पर हम आपको कुछ बातें बताने वाले हैं जो यूनिवर्सल नॉलेज के बारे में हमको यहाँ पर समझनी है। तो जैसे कि मैप होता है लोकेशन का, ठीक उसी प्रकार नॉलेज का भी मैप होता है, तो इसीलिए उसको मैपिंग कहा जाता है। जैसे कि मैप का उपयोग हम लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, जोग्राफिकल मैप का, और यूनिवर्सल नॉलेज का एक मैप होता है जिसका उपयोग हम
सब्जेक्ट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं या डॉक्यूमेंट फाइंड आउट करने के लिए करते हैं कलेक्शन में से। ओके, तो दोनों में ये फ़र्क हमें यहाँ पर दिखाई देता है। तो इसलिए नेसेसिटी ऑफ मैपिंग और ट्रांसलेटिंग नॉलेज आउट ऑफ देयर into concrete and logically developed classes that compound the classification system. This is one of the core aspect of the knowledge organization and development of knowledge. Okay, तो मैपिंग ऑफ द यूनिवर्स ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर फ्लो चार्ट के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ पर मैपिंग होता है। मैपिंग, तो मैप के नेम से मैपिंग ये शब्द आया है यहाँ पर। जोग्राफिकल और नॉलेज जी, पहले दो प्रकार की मैपिंग हमें यहाँ पर करनी है। ओके, तो जोग्राफिकल में प्लेस या लोकेशन हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं। ओके, उसके लिए हमें मैप यूज कर मैप लोकेशन मैप का उपयोग होता है। ओके, और फिर नॉलेज में हमें सब्जेक्ट या थीम फाइंड आउट करने में मदद होती है और इसमें हमें नॉलेज मैप का उपयोग होता है। ऑफ नॉलेज मैपिंग। ओके, तो इस तरह से दोनों का जो कार्य है अलग अलग है, लेकिन उसको मैप या मैपिंग कहा गया है। जैसे कि कोई भी थिंग मेजरमेंट के लिए हम मैप का उपयोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करते हैं। ओके, ठीक उसी तरह से ज्योग्राफिकल फील्ड में मैप का उपयोग हम लोकेशन या प्लेस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं, ये सभी को पता है। ओके, अप टू 12 तक हमने ये पढ़ा है और समझा भी है किस तरह से मैप का उपयोग लोकेशन फाइंड आउट करने में करते हैं। लेकिन जब हम लाइब्रेरी फील्ड में आते हैं तो ऐसा भी मैप हमारे फील्ड में हो सकता है या मैप के द्वारा हम सब्जेक्ट फाइंड आउट कर सकते, थीम फाइंड आउट कर सकते हैं, ये हमें पता नहीं था। लेकिन जब ये कंसेप्ट हमें परिचित हुई, नॉलेज मैपिंग, नॉलेज मैप, तो हमें ये थोड़ी अद्भुत लगी और अलग लगी, क्योंकि मैप हमने जोग्राफिकल फील्ड में ही सुना था, जोग्राफिकल सब्जेक्ट में ही इसका अभ्यास किया था, स्टडी किया था। लेकिन नॉलेज मैप हमारे सब्जेक्ट में क्या हो सकता है, ये कंसेप्ट किस तरह से हो सकती है, एक कन्फ्यूजन हमारे मन में था। लेकिन जब हमने इसका स्टडी किया तो हमें ये समझ में आया कि नॉलेज मैप की मदद से हम सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं और सब्जेक्ट फाइंड आउट करने में हमें नॉलेज मैप की मदद होती है। ओके, तो इस तरह से मैप का मतलब हमें यहाँ पर समझ में आया। Therefore, individual subject change their structure and relationship between subject can be seen in different ways. The prevailing philosophy, material cultures, economic and technological needs, cosmic vision, sense of history, value held by the society,
Influence are the boundaries, status and structure of the stock of knowledge. In its processions, even age and society has distinct views of the structure of knowledge, relative value of its different fields. इस तरह से आपको यहाँ पर ध्यान में आया होगा कि इस तरह से मैपिंग का उपयोग हम करते हैं। तो मैप एक कंसेप्ट है, लेकिन जब हम इसे जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं या हमारी लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो दोनों का कॉन्टेक्स्ट चेंज हो जाता है। जब जोग्राफिकल फील्ड में हम मैप का उपयोग करते हैं तो लोकेशन फाइंड आउट करना उसका उद्देश्य होता है, लेकिन जब हमारी फील्ड में उसका उपयोग करते हैं मैप वर्ड का केवल, तो इसका जो मीनिंग है सब्जेक्ट फाइंड आउट करना होता है। तो इस तरह से भले ही शब्द अलग अलग हो, लेकिन दो फील्ड में अलग पॉइंट ऑफ व्यू से अलग कॉन्टेक्स्ट से वो यूज होता है। Therefore, individual subject change their structures and relationship between subject can be seen in different ways. The prevailing philosophy, material cultures, economic, technological needs, cosmic vision, sense of history and value held by the society influence the boundaries, status, and structures of the stock of knowledge in its positions. Every age and society has distinct views of the structure, knowledge and relative value of its different fields. तो अलग अलग फील्ड में इसका अलग अलग उपयोग किया जाता है। For example, in the Middle Age, theology was considered the queen of science and the other subjects were valued according to their capacity to serve her. तो मिडल एज में थियोलॉजी को मदर सब्जेक्ट कहा जाता था और जो अदर सब्जेक्ट थे उनको अलग अलग वैल्यू था उनके कैपेसिटी अनुसार। नेचुरल साइंस कंसिडर एज आइडल्स मैन क्यूरियोसिटी वेर नॉट वैल्यू मच देन, लेकिन तब नेचुरल साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, उसको आइडल्स मैन क्यूरियोसिटी कहा जाता था। इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ मेविल डिवीज़न in the late 19th century, philosophy and theology occupied very respectable positions. तो जो मेविल डिवे का जो पीरियड था, समय था, तो उसमें फिलोसॉफी और थियोलॉजी को बड़ा इम्पोर्टेंट था, बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता था। It is evident from the fact that 1/5 of space in Dewey Decimal Universal Classification was occupied jointly by these two classes. तो इनका एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। इनका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है क्योंकि डिवे डेसिमल क्लासिफिकेशन में खुद डिवे ने इन दोनों सब्जेक्ट को 1/5 स्पेस डीडीसी में दिया है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इन दो सब्जेक्ट को कितना महत्व था उस टाइम। साइंस रूल द रूट्स हैव बीन गिवन द डी फैक्टो स्टेटस ऑफ नेशनल रिलीजन्स इन सम सेक्युलर कंट्रीज। और फिर नेचुरल साइंस को एक छोटा सा भाग इसमें दिया गया था, साइंस बाय पॉलिसी रिसोल्यूशन मेकिंग साइंस द मेन रिलीजन्स। तो इस तरह से स्कीम के आधार पर हम कौन से सब्जेक्ट को या थीम को या टॉपिक को उस समय महत्व था, ये हमें इससे पता चलता है, क्योंकि महत्व के अकॉर्डिंग ही उन्होंने इस स्कीम की रचना की है। टुडे द स्केल आर टाइटल टुवर्ड द स्टडी ऑफ नेचुरल साइंस, देयर
economic and technical implication. So science rule the root have been given the de facto status. तो साइंस को डीडीसी में de facto status का दर्जा दिया गया था national heritage in some secular country. Okay. In Indian, the parliament passed the science policy resolution making science the main religions. लेकिन इंडियन पार्लियामेंट में साइंस पॉलिसी को एक महत्व दिया गया और पास आउट किया गया पॉलिसी मेन रिलीजन में. Empiricals and experimental modes of investigations are considered reliable methods to discover new knowledge and solve epistemological problems. This day, authority, faith, speculations, and institutions as source of knowledge are looked upon with suspicions by the scientific community. Thus, the status as a subject commands in society is never constant. Some तो इस तरह से नेचुरल साइंस, फिलोसॉफी और थियोलॉजी का महत्व कैसे था उस समय. डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की रचना करते समय डेविड ने इनको किस तरह का स्थान दिया है अकॉर्डिंग टू देयर इम्पोर्टेंस, ये हमें यहाँ पर देखना है. उसके बाद फिर क्लासिफिकेशंस आर इम्परमानेंट. ओके, तो क्लासिफिकेशन एक बार किया इसका मतलब वो परमानेंट हो गया, ऐसा नहीं होता, वो चेंजेबल होता है. उसे हम परमानेंट नहीं कह सकते, इम्परमानेंट कह सकते हैं. As said earlier, with the emergence of new knowledge, the status and position of existing subject undergo a change. जो सब्जेक्ट एग्जिस्टिंग थे उनको भी हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में. इस तरह का सभी क्लासिफिकेशन स्कीम में प्रोविज़न होता है. तो इस तरह से क्लासिफिकेशन जो हमेशा बदलते रहता है अकॉर्डिंग टू द टाइम के अनुसार बदलते रहता है. So inter and intra subject equations are always in flux. तो ऐसे सब्जेक्ट जो होते हैं हमेशा फ्लक्स में रहते हैं, यानी फ्लेक्सिबल रहते हैं. फॉर एग्जांपल मेनी सब्जेक्ट्स सच एज पब्लिक हेल्थ, इंटरनेशनल लॉ, जियोपॉलिटिक्स, डेमोग्राफी, which had status compound or complex subject in the 6 editions in 1960. सभी को कंपाउंड सब्जेक्ट में स्थान दिया गया है 6 एडिशन में, जो एक 1960 में पब्लिश हुई थी. ऑफ द कोलन क्लासिफिकेशन गेन स्टेटस ऑफ बेसिक सब्जेक्ट इन द 7th एडिशन इन 1987 ऑफ द स्कीम. मेनी सिमिलर एग्जाम्पल कैन बी गिवन फ्रॉम द डीडीसी. और बहुत सारे सिमिलर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं. Thus the knowledge structure is always perceived to be changing. तो जो नॉलेज स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सल नॉलेज का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट स्ट्रक्चर होता है यूनिवर्सल सब्जेक्ट का, वो हमेशा चेंजेबल होता है और चेंज होते रहता है. ओके, जैसे कि डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन की रचना जब हुई थी तब फिलोसॉफी और थियोलॉजी को बड़ा इम्पोर्टेंस था, इसलिए 1/5 पोर्शन है वो डीडीसी में उस सब्जेक्ट को दिया गया और नेचुरल साइंस को माइनर स्थान था. लेकिन जब अब की सिचुएशन हम देखते हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन, तो फिलोसॉफी और थियोलॉजी को कम इम्पोर्टेंट है और नेचुरल साइंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस है. उसके बहुत सारे ब्रांचेस है नेचुरल साइंस के. तो इस तरह से ये जो चेंज है हम देखते हैं, तो इससे हम कह सकते हैं कि नॉलेज क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज होते रहता है, क्लासिफिकेशन हमेशा चेंज होते रहता है. An example of scientific relevance of this matter is the recent special issue on subject ontogeny and knowledge organization system change, published by the journals Knowledge Organization in 2016.
Classification essentially represent knowledge and it is map. Okay, it is tool to analyze, organize and represent knowledge, thus tool for knowledge management. Therefore, as the knowledge advances by filling gaps where need, new classification or adjust, modify the earlier ones. We need new classification from time to time as the new knowledge develops. We have not only to revise classification but have to invent new classificatory techniques to organize new knowledge. S.R. Ranganathan recommended the DDC as the best classification for the 19th century literature. At the same time, he thought it quite unsuitable to classify 20th century knowledge, especially of the post-World War. Thus, the 20th century needed new classification system and techniques, and the 21st century may well need new classification, particularly for organizing the internet. Regarding the structures of knowledge, we need to limit ourselves to one epoch within one cultures to find some firm basis for unified knowledge. तो इस तरह से प्रिंसिपल फॉर मैपिंग नॉलेज क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं. So D.W. Langridge, a well-known English librarian, identifies four principles for mapping the universe knowledge. They are not mutually exclusive. फोर प्रिंसिपल उन्होंने दिए हैं. आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल, these are based on some school of thought or some ideology held principle. Earlier example are Christian scheme of the Middle Age. Latest example as Russian classification system, which has made Marxism, Leninism the central universe of knowledge, and to some extent every scheme is based on some ideology. तो कुछ ऐसे स्कीम होते हैं उनमें आइडियोलॉजी स्कीम या आइडियोलॉजी का प्रभाव हमें दिखाई देता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा को स्कूल के थॉट होते हैं, हम आइडियोलॉजी प्रिंसिपल हेल्ड होते हैं. जैसे कि क्रिश्चियन स्कीम में हमें क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का प्रभाव दिखाई देता है, और रशियन स्कीम जो है उसमें लेनिज्म और मार्क्सिज्म दोनों का प्रभाव दिखाई देता है. और वो कौन सी स्कीम है, जैसे कि डीडीसी यूडीसी वगैरह, उसमें क्रिश्चियन आइडियोलॉजी का प्रभाव दिखाई देता है. और रशियन स्कीम जो है बीबीके, जिसे हम बोलते हैं रशियन क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो उसमें मार्क्सिज्म और लेनिसिज्म का प्रभाव दिखाई देता है. टू सम एक्सटेंट एवरी स्कीम इज बेस्ड ऑन सम आइडियोलॉजी. तो हर एक स्कीम किसी न किसी आइडियोलॉजी का समर्थन करती है या आइडियोलॉजी के बेस पर ही वो डिज़ाइन की गई है. ओके, नो क्लासिफिकेशन स्कीम कैन बी वैल्यू फ्री और इंडिपेंडेंस ऑफ द टाइम एंड कल्चर्स ऑफ इट्स ओरिजिन. तो हर एक कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम जब डिज़ाइन की गई उस पर किसी न किसी आइडियोलॉजी का प्रभाव हमें दिखाई देता है. एवरी स्कीम बाय डिफ़ॉल्ट इज biased toward the value and cultures of the society of its origin. That is why the Dewey Decimal classification has to be modified in order to classify applicant as a subject. The principle of social purpose. Vedic system of the division of knowledge into categories of dharma,
अर्थ, काम, मोक्ष। ओके, प्रिंसिपल ऑफ सोशल पर्पज जो था, सोसाइटी के लेयर थे हिंदुइज्म में, हिंदुस्तान या इंडिया में, जैसे कि धर्म हम बोलते हैं, अर्थ बोलते हैं, काम बोलते हैं, ओके, और मोक्ष बोलते हैं। ओके, यानी कि नॉर्मेटिव प्रिंसिपल में धर्म आता है, अर्थ सोशल साइंस में आता है, काम प्योर साइंस में, और मोक्ष स्पिरिचुअल साइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो इन सबका प्रभाव हमें कोलन क्लासिफिकेशन में दिखाई देता है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंसिपल। ओके, इसको हम अलग अलग प्रिंसिपल कहते हैं, बिलोंग टू आवर इंडिया। सो दिस इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन विच इज अरेंज नॉलेज इन ऑर्डर of decreasing current social utility and in the increasing potential for the future use. Dharma is for formation of the society, earth for its governing, karma its material progress and pleasure pursuit, while moksha salvation is to prepare for the life after death. So this is the theoretical classification which has never been the basis of library classification or any detailed knowledge classification. Okay, तो इसको हम theoretical classification कह सकते हैं। इसका कोई संबंध लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन इसका प्रभाव और इसका यूज, इम्प्लीमेंटेशन हमें कोलन क्लासिफिकेशन में दिखाई देता है, जो डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा किया गया है। Ranganathan was bit influenced by it, but he never used it as the basis of this colon classification. इनका कहीं ना कहीं उन पर प्रभाव था, लेकिन उन्होंने एज इट इज इसका यूज एक कोलन क्लासिफिकेशन में नहीं किया, लेकिन उसका एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसका प्रभाव उस पर दिखाई देता है। Scientific order based on some natural or logical order of subject. The principal scientific order were first crystallized E.C. Richardson in his famous book Classification, Theoretical and Practical, 1991. Secondus used evolutionary orders main classes in his expansive classification. Cutter was the opinion that nature has an order which should be reflected in knowledge organized system. तो साइंटिफिक ऑर्डर यानी कि क्या, नेचर का प्रभाव इस सभी और इन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम में हमें दिखाई देता है। जैसे कि नेचर ऑर्डर फॉलो करता है, उस तरह से ऑर्डर इन क्लासिफिकेशन स्कीम में फॉलो की गई है, जो अलग अलग क्लासीफायर ने यहाँ फॉर्मुलेट की है। ओके, तो इसमें अलग अलग क्लासिफिकेशन दिए गए हैं। Seeker was the opinion that nature has an order which should be reflected in knowledge organized system. His system is based upon assumption. उनकी सिस्टम assumption के बेस पे थी। Order of science is the order of things is the order of their complexity. So this is obviously under the influence of the theory of origin species as given by the naturalist Charles Darwin. Okay, इन सभी स्कीम जो हमें यहाँ पर हमने देखी, तो उन सभी में नेचुरल थ्योरी का प्रभाव हमें दिखाई देता है, जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा फॉर्मुलेट की गई है। यहाँ पर फिलोसॉफी या किसी भी प्रकार की प्रिंसिपल हमें यहाँ पर दिखाई नहीं देता, आइडियोलॉजी। नेचुरल थ्योरी के बेस पे हमें ये क्लासिफिकेशन स्कीम दिखाई देती है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि नेचुरल क्लासिफिकेशन एक होता है जो नेचर के द्वारा होता है, या नेचर के जो प्रिंसिपल उनका प्रभाव स्कीम में होता है, और आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो ह्यूमन सोसाइटी के द्वारा किया जाता है।
डार्विन 1809 or 1882, entities in nature have evolved from atomic, molecular and to molar forms. In the modern terms is known as the theory of integrative levels propagated by J.E.L. Fernandez or D.J. Foskett. Therefore, using its principle for organizing our knowledge, which of course is in visible state of constant evolution. So these principles were used to some extent by J.D. Brown in his subject classification, H.E. Bliss in his bibliographic classification. The arrangement of classes in the Library of Congress classification is also based on these principles. तो इस नेचुरल जो थेरी है जो चार्ल्स डार्विन के द्वारा स्थापित की गई, इस थेरी को और इस थेरी के बेस पे H.E. ब्लिस ने बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन और J.D. ब्राउन ने सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन की रचना की है. द अरेंजमेंट ऑफ क्लासेस in the Library of Congress classification is based on this principle. The arrangement of classification in botany and zoology in the DDC and CC is predominantly taxonomic, but its full implication were explored by the classification of research group. When the group attempt to solve the problems of general classification scheme and tried to design new system library classification. इस तरह से नेचुरल थ्योरी जो है इन सभी क्लासिफिकेशन में हमें दिखाई देती है. सो रंगनाथन आल्सो प्रिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ इवोल्यूशनरी. उन्होंने भी इवोल्यूशनरी प्रिंसिपल का जिक्र किया है रंगनाथन ने. तो इस तरह से obviously this theory applies mostly natural objects which have physically evolved. It is also applicable to social entities and titles which obviously are always in state of slow social evolution. तो नेचुरल थ्योरी का प्रभाव जब हमें इन सभी क्लासिफिकेशन स्कीम पर दिखाई देता है तो इस नेचुरल आइडियोलॉजी का भी प्रभाव क्लासिफिकेशन स्कीम पे होता है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं. फिर लास्ट में दिया है प्रिंसिपल ऑफ अरेंजमेंट बाय डिसिप्लिन. डिसिप्लिन इज मेजर एंड कोहेसिव chunk of knowledge from a single mode or having the similar object of the study. तो यहाँ पर अरेंजमेंट का भी प्रभाव अलग अलग स्कीम पर हमें दिखाई देता है. ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ मेविल डिवे was adopt the division of knowledge by discipline. तो डिवीजन ऑफ नॉलेज उन्होंने डिसिप्लिन के द्वारा एक्वायर किया है. DDC in its glossary define the discipline as an organized field of study. Organized field of study कहते हैं उसके branch of learning dealing with the specific kind of subject and or subject consider from specific points of view. Discipline different knowledge into numbers of logically distinct main classes characterized by the positions of cohesions type of concept structures and methods of creation verification of new knowledge. तो डिसिप्लिन किसे कहते हैं? फिर न्यू कंसेप्ट स्ट्रक्चर और मेथड का क्रिएशन और उसके द्वारा नॉलेज वेरिफिकेशन किया जाता है तो उसे हम डिसिप्लिन कहते हैं. द डिवीजन बाय द डिसिप्लिन ऑफर होप्स फॉर comparatively better through by no means perfect solution to the problem of information retrieval to meet needs of library users. तो डिसिप्लिन के द्वारा परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, लेकिन इसका प्रभाव हमें क्लासिफिकेशन स्कीम पर दिखाई देता है. The first position of this method is from the advancement of learning by famous English philosophers man लेटर्स एंड साइंटिस्ट फ्रांसिस बेकन के द्वारा इसका स्टडी किया गया. स्टार्ट में he deeply examined the prevailing state of knowledge means of its productions. तो इस तरह से डिसिप्लिन का यूज करके मेविल डिवे ने डीडीसी में इसका यूज किया है. तो हमने जो ये 4
प्रिंसिपल यहाँ पर देखे जिसमें आइडियोलॉजी, फिलोसॉफी है, नेचुरल साइंस है, नेचुरल थ्योरी है, और फिर लास्ट में जो डिसिप्लिन है और स्ट्रक्चर है, अरेंजमेंट है, तो उसका कहीं ना कहीं प्रभाव हमें अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम पर दिखाई देता है। उसका स्टडी हमने यहाँ पर किया। तो ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हो चुका है। ओके, सो हियर वी विल टेक शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। In some general library classifications are given there. In these sections we will review how the universe of knowledge has been represented in some general library classification system. तो अलग अलग लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन अलग अलग क्लासीफायर द्वारा फॉर्मुलेट किया गया है। सो इन दिस क्लासिफिकेशन what kind of the universal knowledge mapping is presented, we are going to discuss here. Different classification scheme outline are and represent the universe of knowledge in their own way, observing some different principles. So let's see one by one TDC and UDC. Okay, so we will divide based these classes on the inverted Mackinnon order formulated by his contemporary religion philosophers W.T. Arias. The first division is by discipline, and it was the first library classification to do so. Division by discipline implies that one class can collocate all aspects of the subject. Subject topics are scattered by discipline. तो अलग अलग जो डिसिप्लिन के द्वारा सब्जेक्ट स्कैटर है वो यहाँ पर प्रेजेंट किए गए हैं। द थ्री ग्रेट डिविजन्स प्रोड्यूस्ड बाय थ्री फैकल्टीज ऑफ द माइंड्स आर, तीन डिवीजन यहाँ पर क्रिएट किए गए जैसे कि मेन, क्लासेस, डिसिप्लिन, फैकल्टी। ओके, तो उसमें 1 to 6 साइंस रीजन आया है, 7 to 8 आर्ट्स, लिटरेचर, इमेजिनेशन आया है, 9 हिस्ट्री एक क्लास इसमें किए गए। ओके, in fact there are 10 main classes from 1 to 9 and the preceding generally are classes 0. These 10 main class reflect the educational consensus of the late 19th century Western academic world. The DDC main classes are disciplines divided into sub-discipline, which is turn are subdivided into subject, and there is further aspect. Discipline provided a context for subject. तो इस तरह हमें यहाँ पर दिखाई देता है कि 10 मेन क्लास और उसके सब 10 क्लास, फिर उसके सब क्लासेस। ओके, इस तरह एक हायरार्की डिसिप्लिन के द्वारा यहाँ पर डीडीसी में प्रस्तुत की गई है डीवी के द्वारा। आर्टिफिशियल ऑफ डेसिमल नोटिफिकेशन, उसमें रिजिडिटी क्या है, आर्टिफिशियलिटी क्या है, यहाँ पर दिया है। द डीडीसी हैज़ बीन राइटली क्रिटिसाइज फॉर इट्स रिजिडिटी ऑफ डिवीजन बाय 10 एट एवरी स्टेप ऑफ इट्स डिविजन्स। तो मेन क्लास के सब क्लास के और भी सब क्लास, ऐसे 10 क्लास इसमें दिए गए हैं, इसीलिए इसमें एक तरह की रिजिडिटी यानी कि एक आर्टिफिशियलिटी आई है। इसमें नेचुरल फ्लो नहीं है, नेचुरल फ्लो को इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, ऐसी इस पर टिका होती है। मेजर एंड कन्विंसिंग आर्गुमेंट पुट फोर्थ बाय इट्स क्रिटिक्स इज दैट नॉलेज डज नॉट proliferate into patterns obtained at every stage of its development.
बहुत सारे क्रिटिक्स का कहना है कि नॉलेज कभी भी 10 क्लास में डिवाइड नहीं होता। ओके, तो फ्री फ्लो है नॉलेज का, उसमें फ्लो में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि 10 मेन क्लास, 10 सब क्लास, 10 उसके सब क्लास के सब क्लास, ऐसे 10 के नंबर्स में वो डिवाइड नहीं हो सकता। तो इस तरह से डिवे ने एक आर्टिफिशियल प्रयास करके इसको सभी नॉलेज को, यूनिवर्स नॉलेज को 10 क्लास में बिठाने का प्रयास किया है। इस तरह की टीका टिप्पणी उस पर होती है। It is an artificial and rigid mold like the Procrustean bite. It happened because Dewey chose his notation first, classes were formulated later. Notation became the master to dictate its own convenience, but the decimal fraction has a weight advantage for its oscillativity in chain. Hierarchically, the DDC subdivision can be carried to any level by its additions of a digit to the right. At each level, the specificity intention of the subject increase. So 00 to 9 universal of knowledge, 300 social science, 332 333 geo-economics, 332 फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स। ओके, तो इस तरह से सब डिवीज़न के भी सब डिवीज़न हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। उसमें क्या होता है, कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और फिर कौन सा सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट में आता है ये हमें पता नहीं चलता। So visible hierarchy obtained as a default by use decimal notation is the hallmark features of the DDC. तो ये हायरार्की बाय डिवीजन यहाँ पर दिखाई गई है डेसिमल नोटेशन के द्वारा, और इसका ये मेन फीचर है। However, the order in main class array is not without glaring fault. Religion means theology, which is based upon faith rather than reason. ओके, तो रिलीजन और थियोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो फेथ पर आधारित है, रीजन के अलावा। हैज़ बीन इंक्लूडेड इन फैकल्टी ऑफ रीजन। ओके, और वो फैकल्टी ऑफ रीजन में ऐड किया गया है। लैंग्वेज 400 हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम लिटरेचर। एक्चुअली लैंग्वेज और लिटरेचर आर द पार्ट ऑफ ईच अदर्स, बट दे आर सेपरेटेड फ्रॉम टू ईच अदर्स। हिस्ट्री हैज़ बीन सेपरेटेड फ्रॉम सोशल साइंस। So history and social science are part of each other, but they are separated from to each other. So history and geography sharing same main class in one due to paucity of space than any affinity between two. Many more such irregularities can be mentioned at lower level of division and section. और बहुत सारी irregularity जो है lower level और division के सेक्शन में ऐड की गई है। Dewey was the opinion that order classes did not matter much as long as every class was given some place in the schedule. और हर एक क्लास में एक शेड्यूल दिया गया है। He provided powerful and ingenious index for this purpose, और उन्होंने एक इंडेक्स भी प्रोवाइड की है। So this could be lingering relic of medieval age when the church held its clutching sway over life and thought and state. International Journal Knowledge Content Development में ये मेंशन किया गया है, to explore its theoretical और philosophical basis and profitable exercise। तो इसमें थियोरेटिकल और फिलोसॉफिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया है और उसको ही यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इफ़ नॉट फ्यूटिलिटी, और उससे कोई आउटपुट नहीं है। इन Dewey's concern was to devise scheme which
mechanism self-order and provide an appropriate place for the incoming new subject without disturbing to establish order. तो जो नए सब्जेक्ट फ्यूचर में आने वाले हैं वो वहाँ पर बैठ सकते, इसलिए सभी प्रकार की जो स्कीम और शेड्यूल दिए गए एम्प्टी, ऐसी उसकी योजना थी, इसीलिए उन्होंने वो एम्प्टी शेड्यूल वहाँ पे रखे हैं. He neatly did that and successful achieved that with his decimal fraction notation, which is major invention. Its seemingly lack of any theory is later they invented criticism. तो इस तरह से कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव थिंग हमें डीडीसी में इंक्लूड दिखाई देती है, जहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट भी उन्होंने मेंशन किए हैं, जैसे कि शेड्यूल जो एम्प्टी सब्जेक्ट यानी कि फ्यूचर में आने वाले हैं और एम्प्टी शेड्यूल उन्होंने रखे तो उस पर वो सब्जेक्ट वहाँ पर फिक्स बैठ सकते हैं, ये उसका इन्वेंशन कहा जा सकता है. लेकिन बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई है जो अच्छी तरह से नहीं मैच हुई है इस क्लासिफिकेशन में, जो इलॉजिकल लगती है, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है. तो कटर एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन बाय सी कटर is an important arrangement of its premeditated order main classes. It was to be evolutionary order based upon the evolution of knowledge. He was of the opinion that book classification based on knowledge classification has permanent value. तो सी कटर के द्वारा जो एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन दिया गया है इज एन इम्पोर्टेंट अरेंजमेंट कहा जाता है ऑफ इट्स प्री मेडिटेट ऑर्डर मेन क्लासेस. इसमें मेन ऑर्डर क्लासेस प्री मेडिटेट है. इट वॉज टू बी इवोल्यूशनरी ऑर्डर बेस्ड अपॉन द इवोल्यूशन ऑफ नॉलेज. नॉलेज इवोल्यूशन के बेस पर ये अरेंजमेंट की गई है. और कटर यहाँ पर देखिए, कटर यूज अल्फ़ाबेट्स टू डिनोट क्लासेस और to escape rigidity of decimal notation is broader classes are. तो एक्सपांशन क्लासिफिकेशन में कौन से मेन क्लासेस यहाँ पर दिए गए हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए जाते हैं. सो फर्स्ट क्लास इज गिवन देयर, ए जनरली वर्क, बी डी फिलोसॉफी एंड रिलीजन इसमें दिया गया है. और फिर दूसरा है ई जी हिस्ट्री एंड जोग्राफी, एच के सोशल एंड साइंस, एल साइंस एंड आर्ट्स, और एम क्यू बायो साइंस मेडिसिन, आर वी यूजफुल आर्ट्स टेक्नोलॉजी, वार एथलेटिक्स, डब्ल्यू फाइन आर्ट्स, एक्स वाई लैंग्वेज एंड लिटरेचर्स, एंड जेड बुक आर्ट. ओके, तो इस तरह से सी कटर के द्वारा अलग अलग मेन क्लासेस दिए गए हैं कि जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट करके यूज किए गए हैं. ओके, लेकिन आप इसकी कंपैरिजन डी डी क्लासिफिकेशन के साथ करते हो तो उसमें जो क्लास दिए गए हैं वह में क्लासिफिकेशन नोटेशन के बेस पे है. वहाँ पर नंबर भी हमें दिखाई देते हैं और 1 से 9 तक लेकर और 8 से Z तक अल्फ़ाबेट भी दिखाई देते हैं, तो उसे हम मिक्स नोटेशन कहते हैं. ओके, Cutter himself explained the expansive classification follow the evolutionary order throughout. तो कटर ने खुद यहाँ पर एडमिट किया है कि इवोल्यूशनरी ऑर्डर यहाँ पर फॉलो की गई है पूरे स्कीम में. नेचुरल हिस्ट्री it puts the parts of each subject in order which theory assigned to their appearance in creation. Its science proceeds from atomic to molecular, then to the molar, from numbers to space, from matter to
and force, and then to matter and life. Its botany goes up from cryptograms and phenograms. The book art follow history of the book from its production through its distribution to its storage and use in libraries, and ends with their description, that is bibliography. तो इस तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन स्कीम की जो आउटलाइन है यहाँ पर हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। डीडीसी के बारे में हमने जाना, अब जो सी कटर का जो एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त की। सो हियर वी विल स्टॉप हियर, रिमेनिंग पार्ट वी विल टेक टुमारो। थैंक यू।